about isothermal process. So this is the topic of discussion is isothermal process. Okay. So in isothermal process, iso means same and thermal means temperature. So a process in which T is constant. T is constant. So first thing, as the process in which the temperature remains constant is called isothermal process, right? So we'll start with an equation of an ideal gas by equation of an ideal gas. सो हम आइडियल गैस इक्वेशन से यदि शुरू करें तो हम जानते हैं कि जो PB is equal to RT for 1 mole of gas, right? So if in isothermal process temperature remains constant, this is a gas constant. This means that right hand side is constant. So I can write now this PB is constant. Okay? इसका मतलब product of pressure and volume is constant. So if this pressure and volume is constant, you can write down this P is inversely proportional to volume. So this is very interesting. In an isothermal process, the pressure is inversely proportional to the volume, and this is what the Boyle's law is. This is what the Boyle's law is. This is the Boyle's law. हम ऐसा करते हैं कि हम ये कहें कि हमारा एक सिस्टम है, we'll just consider that our system is changing from one state to another state. So we have some one system that is changing from one state to another state. So when the state of the system is defined like this, if you have a system of this kind, and in this system there are the initial values of this pressure P1, B1, and this system is changing from uh, this thermodynamic state variable P1 B1 to P2 B2 to another state. I mean this is this here in this case the volume is V1, and uh, volume is B1, and if your system will expand then volume is B2. So the volume will change from V to B1 to, I mean, I can say this B1 is just V, and B1 is equal to B, and then B2 is V plus some delta V. ओके, हमारा जो सिस्टम है वो उसमें जो एक्सपेंशन में उसका वॉल्यूम जो है V से कोई डेल्टा भी चेंज हो जाता है. ओके, सो इससे क्या होगा, स्मॉल वर्क विल बी डन. सो आई कैन राइट कि जो वर्क डन होगा, द वर्क डन क्या होगा, this delta W is P time delta V, right? This delta W is equal to P time delta V. So यदि हम कंसिडर करें कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम मीन्स अब देखें जो डेल्टा V होगा वो V2 माइनस B1 है, and if B2 and B1 are nearly equal, then I can say that delta V is approximately equal to 0. The change in volume is very small, right? So I can now this we can sum up this quantity delta W over the entire process. इसमें अब हम क्या करते हैं कि हम डेल्टा W को हम जोड़ देते हैं पूरे इस प्रोसेस में. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो W is equal to the integral from B1 to B2, and this is PdV. PdV. ओके, सो अब आप देखें कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो दोनों चेंज होते हैं, और टेम्परेचर वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है. हम यदि देखें, हम यहाँ जोड़ कर रहे हैं, समेशन मींस यू आर एडिंग द थिंग्स. इसमें दो वेरिएबल हैं, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो आप दोनों का जोड़ इकट्ठा नहीं कर सकते. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में चेंज करना पड़ेगा. वी नो दैट. इसके लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट फॉर म्यू मोल्स ऑफ गैस PB इज इक्वल टू म्यू टाइम RT, राइट? सो यहाँ P का जो वैल्यू हो जाएगा, P इज इक्वल टू mu RT divided by V. So this is equation number 1, and this is equation number 2. From equation 1 and 2, this is from
equation 1 and equation number 2. From equation 1 and 2 we have this work done W is equal to, यहाँ हम लिख दें B1 to B2. In place of P we can write mu RT upon V time dB. Okay, so this further could be written as W. इसमें जो constant आप इनको बाहर निकाल लेते हैं, mu is a number of moles, R is a gas constant, T is the temperature in the isothermal process, it is constant. We are left with B1 to B2 और dV upon B. अब आप देख लीजिए कि जो समेशन है वो अब एक ही वेरिएबल के ऊपर हो रही है और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हम यहाँ लिख दें W इज इक्वल टू म्यू आर टी, हमारा जो इंटीग्रल सॉल्व करके आ जाएगा log of V, and this is from B1 to B2. Okay, we can now fill this. W is equal to mu time RT. This is log of B2 minus log of B1. So यहाँ हम फार्मूला लगा सकते हैं log of M minus log of N. This is log of M by N. Okay, we can use it over here. So W हमारे पास आ जाएगा mu RT. This is log of B2 over B1. Okay, और इसको हम आगे लिख सकते हैं बेस 10 में यदि हमने लिखना है तो W इज इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी log of B2 upon B1. So in thermodynamic, in isothermal process हमारे पास क्या होता है, PB is constant, PB is some constant, right? This means P1 B1 is equal to P2 B2. Okay, so हम ऐसा लिख दें कि हमारे पास जो B2 upon B1 है, B2 upon B1 इस इक्वेशन से इट इज इक्वल टू P1 upon P2. so इस इक्वेशन को वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2.303. ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है. दिस इज नाउ log of base 10. okay, this is now log of base 10. This is now P1 upon P2. We can do it like this. So this is the mathematical construct of the isothermal work done in an isothermal process. All right, in an isothermal process is equal to, this is 2.303 mu RT and log of B2 upon B1, right? So we would like to discuss now the results. This is mathematical construct of isothermal process. हम बात करते हैं कि यदि ऐसा होता है if B2 is greater than B1, तो इसको हमें समझना है कि यदि मान लो आपका जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो एक्सपैंड होता है. सो फर्स्ट केस है, यदि आपका सिस्टम एक्सपैंड होता है मींस आपका जो पिस्टन है वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा. तो इफ B2 इज ग्रेटर देन B1, यदि आप यहाँ फिल करें तो आप देखेंगे जो वर्क डन है इसमें क्या होगा. मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, सिस्टम विल एक्सपैंड, सिस्टम विल एक्सपैंड. ओके, सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, W इज ग्रेटर देन 0. ओके, सो हम ये कहेंगे दिस इज द वर्क डन, the work done by the system. When the system will expand, this is the work done by the system. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट इफ V1 is less than V2, so क्या होगा, सिस्टम विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसमें वर्क डन क्या होगा, इट्स लेस देन 0. वर्क डन इज नेगेटिव, work done is negative, and in this case I can write the work is done on the system. The work is done on the system. Okay, one more beautiful thing about this is that कि देखिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इन थर्ड पॉइंट,
इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T is constant. Now if temperature is constant, this means dt is equal to 0, and the internal energy is a function of temperature, so I can say that delta U is equal to 0. Okay, so we know that कि जो डेल्टा Q है, डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W. Okay, so in isothermal process delta U will become equal to 0. So this means that heat added to the system will just change into the work done. वो जो हीट आप सिस्टम को देंगे वो सारी जो है वो वर्क डन में चेंज हो जाएगी. So these are all the outcomes of the isothermal process. Thank you. We are going to discuss about the work done in an adiabatic process. So सबसे पहले हम बात कर देंगे adiabatic process क्या होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो सिस्टम है उसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं जिसमें प्रेशर P1 हो, वॉल्यूम V1 हो, टेम्परेचर T1 हो, ये जो है वो चेंज होंगे तीनों ही. और प्रेशर जो है वो P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा. बट इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा. सो देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. सो आई कैन से मैथमेटिकली कि जो डी क्यू है वो ज़ीरो रहेगा. ओके, सो यदि हमारा सिस्टम एक्सपैंड होता है तो क्या होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज तो नहीं होगी. यदि हम ऐसे बात करते हैं कि हमारे पास ये हमारा एक सिस्टम रहा और ये कंटेनर है. अब हमारा यदि जो सिस्टम है वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने के बाद क्या होगा, जो पिस्टन है वो ऊपर की ओर जाएगा. तो इससे क्या होगा, जो डी क्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगी. तो डी क्यू के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, राइट. बट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल चेंज. ओके, सो हम बात करें कि यदि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इस इक्वेशन की, तो ये होगी कि पी बी गामा इज कांस्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. पी बी गामा इज कांस्टेंट, बट हम इसका मैथमेटिक्स नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी. सो यहाँ जो गामा होगा, जो गामा होगा रिलेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ द specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at the constant volume. So PV gamma is constant को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें P1 B1 gamma is equal to P2 B2 gamma. It is equal to constant, some constant, मतलब P1 B1 gamma भी constant के बराबर होगा, P2 B2 gamma भी constant के बराबर होगा, तो ये हमेशा सेम रहेंगे. हम बात करते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. यदि हमारा सिस्टम जो है, यदि हमारा सिस्टम जो है वो P1 जिसके पहले स्टेट वेरिएबल जो है वो P1 B1 T1 है. यदि हम यहाँ कहें कि हमारे पहले जो स्टेट वेरिएबल है P1 B1 T1 है और ये सिस्टम या तो एक्सपैंड होता है तो इसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं थोड़ी देर के बाद P2 B2 और T2 हो जाते हैं. ओके, तो इसके लिए वर्क होगा. तो आपका वॉल्यूम जो है वो शुरू में, फॉर एग्जांपल कि जो शुरू में आपका वॉल्यूम V1 जो है वो कोई V उसका वैल्यू है, और आफ्टर सम टाइम बिकॉज in adiabatic process three state variables, all these three state variables are changing, इसका जो वॉल्यूम है V प्लस कोई डेल्टा V हो जाता है. ओके, सो जो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा W जो होगा वो P डेल्टा V हो जाएगा. हम ये मान के चलें यदि ये चेंज इन वॉल्यूम जो है, इफ दिस डेल्टा V अप्रोचेस टू जीरो, यदि ये बहुत कम है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है बिटवीन द स्टेट्स B1 टू B2, ये आ जाएगा बिटवीन द स्टेट V1 टू B2, इट कुड एज PdB. इसके ऊपर हम इसका सम कर देंगे. पर आप जानते हैं कि इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो हम एक टाइम में दो चीज़ों को, दो स्टेट वेरिएबल्स को नहीं जोड़ सकते. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक स्टेट वेरिएबल रिड्यूस करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं कि जो पी वी गामा जो कांस्टेंट है, वहाँ हम यहाँ पी वी गामा, इसका दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर, पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1. सो हियर P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा. ओके,
सो वी कैन यूज दिस फ्रॉम हियर, ताकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रल पार्ट में वो रिड्यूस हो जाए। तो हमारे पास अब आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, दिस इज B1 to B2 and this is constant upon V power gamma time dB, right? So अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, which could further be written as this is from B1 to B2, this constant can be taken outside, this is V power minus gamma into dB, right? So using the concept of integration I can write it like that, इसका इंटीग्रल आ जाएगा v की पावर माइनस गामा, एक ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस गामा फ्रॉम इंटीग्रल b1 टू b2, विच कुड फर्दर बी रिटन एज k। और आप 1 माइनस गामा को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले आप अपर लिमिट को भरेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट को भर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा b2 की पावर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस गामा minus in the second stage you can write this is V1 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस गामा। ओके, सो कांस्टेंट जो है हमारे पास आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ k का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, k देखिए जरा यहाँ, k P1 B1 गामा भी हो सकता है और k जो है वो P2 B2 गामा भी हो सकता है, तो हम यहाँ इसको यूज करते हैं, हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस गामा, अब k को आप अंदर ले जाइए और B2 के टाइम आप k की वैल्यू को आप लिख दें P2 B2 गामा एंड B2 1 माइनस गामा माइनस k की जगह हम लिख दें P1 B1 गामा और B1 का पावर 1 माइनस गामा। We have work done in adiabatic process is equal to 1 upon 1 माइनस गामा, यहाँ देखिए आप B2 इसमें बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो गामा के साथ गामा कैंसिल हो जाएगा, we will have P2 B2 और यहाँ देखिए आप बेस यहाँ B1 यहाँ भी B1, यहाँ से गामा और गामा जुड़ने के बाद कैंसिल हो जाएगा, you will left with the P1 B1। okay, using gas equation यूजिंग गैस इक्वेशन, यदि हम गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो हमें कह सकते हैं कि P1 B1 को आप लिख सकते हैं RT1 कॉमा, आप P2 B2 को आप लिख सकते हैं RT2। अब आप इसको यूज कर दीजिए इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 and this is equation number 4, from 3 and 4, from equation इसको हम 5 लिख देते हैं और इसको 4 लिख देते हैं, from equation 3 4 and equation number 5 we have, देखिए हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा और P2 B2 की जगह आप यहाँ क्या ले सकते हैं RT2, दिस इज RT2 माइनस P1 B1 की जगह हम ले सकते हैं RT1, इसको आप ऐसे लिखते हैं, R को कॉमन ले लीजिए R और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस गामा एंड यू आर लेफ्ट विद T2 minus T1, so you know gamma is greater than 1, as gamma is greater than 1 तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस आप कॉमन ले लें तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस आर अपॉन, नीचे भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं गामा माइनस 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा T1 माइनस T2, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ आर अपॉन गामा माइनस 1 एंड दिस इज T1 माइनस T2। ओके, सो दिस इज द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कैसे होगा,
सो वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। हम सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस नाउ इज R upon gamma minus 1 and this is T1 minus T2। तो इसको हम सबसे पहले सुंदरता से लिखना चाहते हैं ऐसे करके, और ये देखिए ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो कैसे पॉजिटिव होगा। देखिए फर्स्ट केस यहाँ डिस्कस करते हैं। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन 0 कब होगा? इफ, अब सामने देखिए आप, T1 इज ग्रेटर देन T2। सो इसमें हमारा जो सिस्टम होगा वो एक्सपैंड होता है। System will expand, work done will be 0 if the system will expand, or if this the work done, if this is the work done by the system, then the system will expand। और यदि सिस्टम के ऊपर काम होता है, so work done on the system, then work done is negative। so here in this case दूसरा केस होगा work done in adiabatic process is less than 0 if less than 0 कब आएगा? if T1 is less than T2। so here in this case this the work is done on the system, right? And we get that T2 is greater than T1। okay, so yeah, there's one more important part about this adiabatic process। आपको यदि competitive exam का पहलू भी हमें साथ में लेके चलना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास होता है तो उसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहते हैं। वी लाइक टू डिस्कस दिस लिटिल बिट मोर, हाउ वी कैन राइट वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये देखिए हमने किया कि जो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको हमने लिखा R अपॉन दिस इज गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 and T1 minus T2। We would like to discuss it little bit more। अच्छा, हम जानते हैं कि जो गामा हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि इट इज अ रेशियो ऑफ CP अपॉन CB। ओके, एंड और दूसरा हम इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पिछले पेज की बात है, हम इसको बिना इक्वेशन में रहने देते हैं। कॉमा हम लिखते हैं कि CP माइनस CB इज इक्वल टू R। तो हम इस वर्क डन को इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। दिस वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू R अपॉन गामा की जगह हम लिख सकते हैं दिस इज CP अपॉन CB माइनस 1 एंड T1 माइनस T2। सो अब हम लिखें आगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू R अपॉन दिस इज CP माइनस CB, और ये जो CB है वो ऊपर चला जाएगा, दिस इज CB एंड दिस इज T1 minus T2। okay, now using this CP minus CB is equal to R, from here आप यहाँ पुट कर दीजिए। so we will find that work done in adiabatic process is equal to CB time CP minus CB upon CP minus CB, okay, into T1 minus T2। so CP minus CB से CP minus CB cancel हो जाएगा। so we will have work done in adiabatic process is equal to CB into T1 minus T2। okay, so this is another form of the work done in an adiabatic process। thank you। It's about isochoric process। this is what we are going to discuss about isochoric process। we are going to discuss about isochoric process। so in isochoric process, so इसका mathematical definition क्या है? volume is constant। so पहले हम लिखते हैं इसमें क्या होगा, volume is constant। so if volume is constant, इसका mathematical construct क्या होगा? वो होगा dV is equal to 0। I can say delta V is equal to 0। okay, so अब वर्क डन का फार्मूला हम लिख, तो वर्क डन का फार्मूला ऐसे ही लिखा जाता है कि जो डेल्टा V है ना,
सो डेल्टा V इज इक्वल टू P टाइम डेल्टा V होगा. So in isochoric process, if delta V is equal to 0, this means that delta W is also equal to 0. So no work is done in isochoric process. मतलब सिंपल सी बात है, आप इसको प्रैक्टिकली एक सेंस जैसा करें. देखिए, आप खुद कॉमन सेंस लगा दें कि आपका सिस्टम है, उसमें आपने एक पिस्टन लगा रखा है और उसका जो इनिशियल जो स्टेट है वो है P1, B1 और T1. अब हम यदि कहें कि आपका जो सिस्टम है वो यहाँ से हिलेगा ही नहीं तो वर्क कैसे होगा. तो इसलिए यदि चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा देन वर्क डन इज इक्वल टू 0. तो आगे सवाल ये है कि जो हमने पढ़ा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो यदि वर्क डन नहीं होगा, इफ दिस पार्ट विल बिकम इक्वल टू 0, तो आप अपने सिस्टम को जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम आएगी. और यदि आप चेंज इन टेम्परेचर को डिटरमिन करना चाहते हैं, then change in temperature is determined by uh, specific heat capacity at constant volume, CB, that is equal to delta Q upon delta T at constant volume. Okay, so well, now we are going to discuss about the another kind of system. So that is isobaric process. So we'll discuss now about the isobaric process. Isobaric process. We will discuss about isobaric process. Iso means same, bar means pressure. So if the pressure will not change, so here the pressure is constant. Pressure is constant. In isobaric process, the pressure is constant. So if the pressure is constant, then we can say कि हम ऐसा लिखते हैं तो वर्क डन क्या होगा. जो वर्क डन होगा W डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा B. ये तो P डेल्टा B होगा ना. तो इसको मैं आगे लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा B इज द चेंज इन वॉल्यूम. तो हो सकता है कि वॉल्यूम ऐसे चेंज करता है V2 माइनस V1. चेंज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम एक इक्वेशन अपने लिखें फॉर 1 मोल ऑफ गैस. फॉर ये देखिए 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल ऑफ गैस के लिए आप लिख सकते हैं कि पी बी इज इक्वल टू आर टी लिखते हैं आप, है ना. तो इसमें हम लिखें प्रेशर तो फिक्स है, आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस से प्रेशर फिक्स है, तो हम इसे लिखेंगे पी वी वन इज इक्वल टू आर टी वन. और जो पी वी टू है उसको हम लिखेंगे आर टी टू. तो मीन्स P, और यहाँ देखिए आप B2 माइनस B1 लिखें तो आपके पास आ जाएगा R इंटू T2 माइनस T1. सो हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज इक्वल टू R टाइम T2 माइनस T1. ओके, और दिस इज लाइक दैट. तो इसमें क्या होगा कि जो आप सिस्टम को हीट देंगे, हम इसमें यदि चेंज इन टेम्परेचर को स्टडी करना चाहते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं, सेम पैरेलल हम चलते हैं. चेंज इन टेम्परेचर इज डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. उसका हम लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, और अब आप देखिए हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. सो अब क्या होगा, यदि सिस्टम को आप हीट देंगे देन इट पार्टली चेंज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज होगा. So it partly used to increase the internal energy of the system, and the remaining part of the energy given heat will helps us to perform, will help the system to perform some work. Okay, तो इस तरीके से वो यूज हो जाएगी. अब हम आगे चर्चा जारी रखते हैं और हमारी चर्चा का जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है. We are going to discuss about cyclic process. We are going to discuss about cyclic process. तो साइक्लिक प्रोसेस में आपने साइकिल को याद कर लेना, जो आपने बचपन में चलाई है बस उसी का ध्यान रखना है.
So we need to take care of the cycle as we've used it in the childhood. तो इसमें क्या होगा कि जो सिस्टम फॉर एग्जांपल कि उसकी जो इनिशियल स्टेट ऐसे है और उस इनिशियल स्टेट के जो पैरामीटर हैं कोई भी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम विल रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। जो सिस्टम है वो वापस फिर उसी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो इट विल कम बैक आफ्टर गोइंग थ्रू द वेरियस स्टेप्स, द सिस्टम विल कम बैक टू दिस इनिशियल स्टेट P1 B1 T1 सिर्फ सेम स्टेट को वो गेन कर लेगा। यदि सिस्टम जो है वो सेम स्टेट को गेन कर लेगा तो जो ये सिस्टम क्या हुआ एक स्टेट फंक्शन है, तो उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगी। जो इनिशियल स्टेट होगी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल स्टेट is equal to final state. Okay, so as initial state or final state will become the same, so हम ये कहेंगे कि इसमें जो change in internal energy होगा वो zero होगा, because internal energy is the state function. So the change in internal energy in the cyclic process is equal to zero. So if the change in internal energy is equal to zero, तो हमें आगे कहें कि हमारे पास आ जाएगा, हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, सो हम ये कह सकते हैं कि जितनी हीट हम सिस्टम को देंगे वो सारी की सारी वर्क डन में चेंज हो जाएगी। द इंटायर हीट गिवन टू द सिस्टम will change only into the work done. So this is all about the cyclic process. Thank you.